السلام علیکم۔ ناول نگری پر خوش آمدید۔ آج ہم اردو ادب کے اس شاہکار ناول کا آغاز کر رہے ہیں جس نے دہائیوں تک قارئین کے دلوں پر راج کیا۔ شوکت صدیقی کا قلم بند کیا ہوا یہ ناول جانگلوس محض ایک کہانی نہیں بلکہ پنجاب کے پس منظر میں سماجی ناانصافیوں، انسانی رویوں اور معاشرتی تلخیوں کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ ملاحظہ کریں گے جانگلوس کی پہلی قسط جس میں لالی اور رحیم داد کی زندگی کے نشیب و فراز اور ان کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ ناول کے بارے میں مصنف شوکت صدیقی، موضوع سماجی و معاشرتی مسائل، جرم و سزا اور انسانی نفسیات۔ پہلی قسط 60 منٹ۔ اگر آپ کو اردو کے کلاسک ناول پسند ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلی اقساط آپ کو بروقت مل سکیں۔ ہوا کا تیز جھونکا آیا، خزاں رسیدہ پتے درختوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گرے اور دور دور تک بکھر گئے۔ یہ 1954 کے موسم خزاں کی ایک ویران رات تھی۔ لاری سٹینڈ سنسان پڑا تھا، دکانیں بند تھیں، روشنیاں بجھ چکی تھیں، دونوں اندھیرے میں دم بخود کھڑے تھے۔ ڈرائیور ہوٹل کے سامنے لکڑی کی بینچ پر کوئی چادر اوڑھے لیٹا تھا۔ قریب ہی ایک آوارہ کتا ہڈی چبا رہا تھا۔ ہڈی اس کے دانتوں تلے کڑک کڑک کر ایک ہی انداز سے بجتی اور اس کی آواز سناٹے میں تحلیل ہو جاتی۔ دونوں سایوں کی مانند تاریکی میں دھندلے نظر آ رہے تھے۔ ایک کا قد کسی قدر نکلا ہوا تھا، چھریرا جسم تھا، آنکھیں چھوٹی چھوٹی تھیں اور اندر دھسی ہوئی تھیں، رنگ گندمی تھا۔ یہ رحیم داد تھا۔ دوسرا لال دین تھا، مگر سب اسے لالی کہتے تھے۔ وہ گٹھے ہوئے بدن کا مضبوط جوان تھا۔ دونوں کی حجامت بڑھی ہوئی تھی، سروں کے بال خشک اور بے ترتیب تھے۔ لالی بینچ پر لیٹے ہوئے آدمی کی چادر اتارنا چاہتا تھا۔ اس نے چادر کا کونا پکڑ کر آہستہ سے کھینچا۔ وہ چونک پڑا، کروٹ بدلی اور نیند میں ڈوبی ہوئی آواز میں بڑبڑایا، "وہ تنگ نہ کر۔" اب وہ خاموش لیٹا تھا۔ رحیم داد اور لالی کو مطلق اندازہ نہ تھا کہ وہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے۔ دونوں سراسیمگی کے عالم میں کچھ دیر دم سادھے کھڑے رہے۔ جب نہ کوئی آہٹ ہوئی نہ آواز تو وہ دبے دبے قدموں چلتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ رحیم داد نے چلتے چلتے لالی سے پوچھا، "رات کتنی رہتی ہے؟" اس کے لہجے سے تھکن اور بیزاری جھلک رہی تھی۔ "ابھی بہت رہتی ہے۔" لالی نے گردن اٹھا کر آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھا۔ چند لمحے خاموش رہا، پھر قدموں کی رفتار تیز کرتے ہوئے اس نے رحیم داد کی جانب دیکھا۔ تیکھے لہجے میں بولا، "اڑیل کھوتی نہ بن، مرداں والی چال چل۔ تو نے پھر تھانے داری شروع کر دی۔" رحیم داد نے احتجاج کیا۔ "ایسا کر یہیں لیٹ جا۔" لالی نے ایک بار پھر مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ "میں بیٹھ کر تیرے پاؤں دباتا ہوں، یہی چاہتا ہے نا؟" رحیم داد نے زبان سے ایک لفظ نکالے بغیر جھنجھلا کر لالی کو دیکھا اور چپ چاپ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ آدھی رات تک دونوں مونٹگومری جیل میں قیدی تھے۔ رحیم داد کو بلوے اور اقدام قتل کے جرم میں 3 سال قید بمشقت ہوئی تھی۔ جیل ہی میں اس کی ملاقات لالی سے ہوئی۔ وہ پہلے سے وہاں موجود تھا اور 1.5 سال کی سزا بھگت رہا تھا۔ ایک روز لالی نے رحیم داد کو اعتماد میں لیا اور جیل سے فرار ہونے کا منصوبہ بنایا۔ رحیم داد کھچکچایا، پہلے ذرا جھجکا اور انکار میں گردن ہلانے لگا، مگر جب لالی نے حوصلہ بڑھایا اور قید کی گھٹن سے نکل کر آزاد فضاؤں میں سانس لینے کی تمنا خوف دہراز پر غالب آ گئی تو وہ لالی کے ساتھ فرار ہونے پر آمادہ ہو گیا۔ جیل کے گھڑیال نے رات کے 12 بجائے، پہرا بدلا۔ نئے پہرے دار بیرکوں اور چکیوں کے تالے بجا بجا کر کاٹا بتا سب ٹھیک ہے کی صدائیں بلند کر چکے تو لالی نے اپنا کام دکھایا۔ وہ رحیم داد کے ہمراہ نہایت صفائی سے جیل کی اونچی اونچی فصیلوں سے باہر نکلا۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ جیل سے بھاگے ہوئے 2 گھنٹے سے اوپر ہو چکے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ صبح گنتی ہونے سے پہلے کسی کو ان کے فرار ہونے کی خبر نہ ہوگی۔ ان کے پاس چند گھنٹے اور تھے۔ اس عرصے میں وہ جلد سے جلد بہت دور نکل جانا چاہتے تھے۔ جیل سے فرار ہونے کے بعد وہ کچھ دیر ایک ویرانی میں بھٹکتے رہے، پھر عارف والا روڈ پر آ گئے اور چلتے چلتے لاری سٹینڈ پر پہنچ گئے۔ لاری سٹینڈ اب بہت پیچھے رہ گیا تھا، جیل اس سے بھی پیچھے تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا، ستارے اجلے اجلے کمل بن گئے تھے، سڑک ویران تھی، دونوں جانب درخت تھے، پت جھڑ کے دن تھے، ہوا میں تیزی کے ساتھ ہلکی ہلکی خنکی بھی تھی۔
سڑک پر بکھرے ہوئے خشک پتے تیز جھونکوں سے خاموشی میں کھڑکھڑا رہے تھے۔ لاری اور رحیم داد ننگے پیر تھے۔ وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے مسلسل چل رہے تھے اور تھکن کے باوجود تیز تیز قدموں سے چلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہیں اس علاقے کے بارے میں کوئی اندازہ نہ تھا، نہ راستوں کا پتہ تھا اور نہ کوئی ایسا ٹھکانہ جانتے تھے جہاں وہ روپوش ہو سکتے۔ وہ منزل سے بے خبر آگے اور آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ رحیم داد کچھ زیادہ ہی تھکا ہوا تھا، کہنے لگا، لالی یہ تو بتا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ تو مجھے بھی پتہ نہیں، لالی نے بے نیازی سے جواب دیا۔ مخولی نہ کر، ٹھیک ٹھیک گل کر، اس طرح ہم نے کب تک چلتے رہنا ہے؟ لالی نے رحیم داد کا بازو تھام کر انگلیوں سے گوشت ٹٹولا۔ دیکھنے میں تو تگڑا لگتا ہے پر باتیں زنانیوں کی سی کرتا ہے۔ رحیمیں حوصلے سے کام لے، ایسے تو اپنے ساتھ مجھے بھی مروا دے گا۔ رحیم داد کچھ کہنے ہی والا تھا کہ عقب سے ہارن کی تیز آواز ابھری۔ دونوں نے پلٹ کر دیکھا۔ سڑک کے موڑ سے روشنی ابھری اور خزاں رسیدہ درختوں کی برہنہ شاخوں سے چھن چھن کر ہر طرف بکھرنے لگی۔ وہ جھٹ سڑک سے نیچے اترے اور ایک گھنی جھاڑی کی اوٹ میں دبک کر بیٹھ گئے۔ رحیم داد زیادہ سہما ہوا تھا، وہ گہری گہری سانس بھر رہا تھا۔ لالی بھی خوفزدہ تھا مگر چوکس نظر آتا تھا۔ روشنی قریب آتی گئی، سڑک پر پہیوں کے تیزی سے دوڑنے کی آواز بڑھتی گئی۔ ذرا دیر بعد ایک جیپ عین ان کے سامنے آ کر ٹھہر گئی۔ جیپ میں 4 مسلح رینجر سوار تھے۔ ایک ڈرائیور کے برابر بیٹھا تھا، 3 پچھلی نشست پر تھے۔ ان کے ہاتھوں میں رائفلیں دبی تھیں۔ جیپ کے رکتے ہی اگلی نشست سے ایک شخص نیچے اترا۔ وضاقتہ سے وہ ڈکٹیٹر معلوم ہوتا تھا۔ اس کے باہر آتے ہی ایک رینجر بھی جیپ سے اتر کر سڑک پر آ گیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا نشیب میں اترا، جھاڑی کے قریب پہنچا اور اطمینان سے پیشاب کرنے لگا۔ رحیم داد اور لالی سانس روکے بیٹھے رہے، سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتے رہے۔ ہوا کے تھپیڑوں سے چھینٹے اڑ اڑ کر ان کے چہروں پر گرتے رہے، مگر ڈر کے مارے انہوں نے ذرا بھی جنبش نہ کی۔ سڑک پر ڈرائیور جھک جھک کر جیپ کے پہیے دیکھ رہا تھا۔ رحیم داد کو کھانسی کا کھٹکا محسوس ہوا، اس کے حلق کے اندر خر خر ہونے لگی۔ لالی نے ہاتھ بڑھا کر جھپٹ کر اس کا منہ دبوچ لیا۔ اسی اثنا میں ڈرائیور کی آواز ابھری، پنکچر تو نہیں لگتا جی، پر ایک پہیے میں ہوا ضرور کم ہے۔ جھاڑی کے قریب کھڑے ہوئے رینجر نے گردن موڑ کر اونچی آواز سے کہا، اسٹیشن تک تو پہنچ ہی جائے گی، وہیں پیٹرول پمپ سے پہیے میں ہوا بھروا لینا۔ وہ پتلون کے بٹن لگاتا ہوا مڑا اور جیپ کی جانب بڑھنے لگا۔ لالی اور رحیم داد جھاڑی کی اوٹ سے اسے دیکھتے رہے۔ ڈرائیور اور رینجر جیپ میں سوار ہوئے۔ رات کے سناٹے میں جیپ کا انجن زور زور سے گھگھرایا۔ جیپ آگے بڑھی اور تیزی سے سڑک پر دوڑنے لگی۔ ذرا دیر بعد نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ لالی گردن اٹھائے اسے دور تک دیکھتا رہا، پھر رحیم داد کی پیٹھ پر زور سے دھپ مار کر بے تکلفی سے بولا، تو نے تو مردہ ہی دیا تھا رحیمے، سور دا پتر بالکل منہ پر کھڑا موت رہا تھا۔ رحیم داد نے منہ بگاڑ کر بے زاری سے کہا، پر تیری کھانسی سے تو بیڑا ہی غرق ہو جاتا۔ لالی نے مسکرا کر کہا، وہ تو میں نے جھٹ تیرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، ورنہ دونوں پھر جیل کی ہوا کھاتے۔ لالی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے رحیم داد کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ اب یہیں بیٹھا رہے گا؟ جلدی کر، ابھی تو بہت چلنا ہے۔ رحیم داد بھی کھڑا ہو گیا لیکن خاموش رہا۔ لالی نے دریافت کیا، تو کس سوچ میں پڑ گیا رحیم ہے؟ رحیم داد بولا، سوچ رہا ہوں یہ پرے کدھر کیسے آ گئے، کہیں انہیں ہمارے جیل سے فرار ہونے کا تو پتہ نہیں چل گیا؟ پولیس تو نہیں تھی، وردی سے تو رینجر لگتے تھے، لالی نے کہا، پر ہمیں یہاں سے جلد ہی دور نکل جانا چاہیے۔ ہم نے جانا کہاں ہے؟ اپنی تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ رحیم داد نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ لالی نے اس کا حوصلہ بڑھایا، پرواہ نہ کر، بس ذرا قدم بڑھا کے چل۔ دونوں جھاڑی سے نکل کر سڑک پر آ گئے اور خشک پتوں کو روندتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ انہوں نے 2-2.5 میل راستہ طے کیا ہوگا کہ بنجر اور اجاڑ علاقہ ختم ہو گیا۔ اب کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ سڑک پر چلنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ دونوں سڑک سے اتر کر کھیتوں کے درمیان سے گزرنے والے کچے راستے پر چلنے لگے۔ یہ پگ ڈنڈی تھی، اتنا کشادہ کچا راستہ تھا کہ دونوں ساتھ ساتھ چل سکتے تھے۔ پگ ڈنڈی کے دونوں طرف گندم اور جو کی فصلیں سر اٹھائے کھڑی تھیں۔ ہوا پھرائے بھرتی ہوئی چلتی، گندم اور جو کی بالیاں جھومنے لگتی۔ کھیتوں میں دور تک لہریں ابھرتی اور ڈوبتی نظر آتی۔ ہوا کی سرسراہٹ سے فصلوں میں سیٹیاں بجتی۔ لالی اور رحیم داد ہر آواز پر چونک پڑتے، ان کے قدم ڈگمگا جاتے۔
फिर उन आवाज़ों में एक नई आवाज़ उभरी। ये गीदड़ों का बेहंगम शोर था। वो ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे। ज़रा ही देर बाद गीदड़ों का एक गौल खेतों से निकलकर उनके करीब से गुजरा। रहीम दाद और लाली झिझक कर खड़े हो गए। दोनों कुछ देर बाद आगे बढ़े। पगडंडी ज़्यादा तवील न था। मुश्किल से मेल भर का रास्ता था कि दोनों बहुत चौकना थे और किसी अनजाने खौफ से सहने हुए थे। पगडंडी ख़त्म हो गई। वो खेतों से निकलकर बाहर आ गए। सामने रोड था। इस खुले मैदान के उस पार दरख्तों का झुंड था। झुंड के पीछे मिट्टी के बने हुए कच्चे मकानात थे। मकानों के बीच से एक गली गुजरती थी। गली के नुक्कड़ पर 2 मंजिला पुख्ता माड़ी थी। उसके पहलू में भूसे की छत का लंबा ढारा था। ढारे में मवेशी थे, जिनकी गर्दनों में पड़ी हुई घंटियां रुक रुक कर सन्नाटे में बज रही थी। वो आगे बढ़े, रोड उबूर किया और दरख्तों के नीचे पहुंचकर अंधेरे में खड़े हो गए। एक खिड़की से रोशनी उभर कर अंधेरे में बिखर रही थी। वो धुंधली रोशनी में गर्दोपेश का जायजा लेने लगे। दफतन कदमों की आहट मुभरी। एक शख्स निहायत मुश्तबा हालत में उनके सामने से गुजरा। उसके चेहरे पर ढाता बंधा था, सिर्फ आंखें नजर आ रही थीं। वो चौकन्ना नजरों से इधर उधर देखता हुआ ढारे के करीब जाकर खड़ा हो गया। लाली और रहीम दाद आंखें भाड़े उसे सहमी हुई नजरों से देखते रहे। वो आगे बढ़ा और अंधेरे में गायब हो गया। रहीम दाद कुछ देर तो हैरत से गुमसुम रहा। फिर उसने लाली के कान के करीब मुंह ले जाकर धीरे से कहा, लाली यार ये चक्कर क्या है? मवेशी चोर जान पड़ता है, लाली ने आहिस्ता से बताया। लाली का ख्याल ठीक ही निकला। कुछ देर बाद वो शख्स मवेशियों के ढारे से बाहर निकला। उसके एक हाथ में रस्सी दबी थी। वो आगे आया तो पीछे से एक भैंस भी नमूदार हुई। वो किसी और समत जाने के बजाय सीधा दरख्तों के झुंड की जानिब बढ़ा। उसे अपनी तरफ आता देखकर लाली एक दरख्त के तने की आड़ में दब गया और हाथ पकड़कर रहीम दाद को अपनी पुष्ट पर कर लिया। वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ करीब आता गया, करीब और करीब। जब वो बिल्कुल उनके नज़दीक पहुंच गया तो लाली ने झपट कर बाएं हाथ से उसका मुंह दबोच लिया। इस शख्स ने निहायत फुर्ती से धोती के डब से चाकू निकाला, लेकिन लाली ने चाकू खोलने की मोहलत न दी। झट उसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। चाकू जमीन पर गिर पड़ा। रहीम दाद हैरत से ये तमाशा देख रहा था। लाली ने चाकू की जानिब इशारा करते हुए तीखे लहजे में रहीम दाद से कहा, खड़ा मुंह क्या तक रहा है, उठा और खोल ले उसे। रहीम दाद ने फौरन उसकी हिदायत पर अमल किया। झुककर चाकू उठाया, उसे खोला और उस शख्स के करीब पहुंच गया। अब रहीम दाद के हाथ में दबे हुए चाकू की नोक उसकी कमर से लगी हुई थी। लाली ने उसके मुंह से हाथ हटा लिया। वो सरासीमा होकर दोनों को फटी फटी आंखों से देखने लगा। दोनों जेल के कैदियों की वर्दी में उसके सामने इस तरह खड़े थे कि अंधेरे में भूतों की मानंद डरावने नजर आते थे। वो चंद लम्हे हक्का बक्का रहने के बाद झिझकते हुए बोला, तुम हो कौन? लाली ने तराख से उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। डांट कर बोला, सीधी तरह गलकर, तेरा नाम क्या है? फिज्जा, उसने आहिस्ता से अपना नाम बताया। लाली ने करीब खड़ी हुई भैंस की जानिब हाथ से इशारा करते हुए दरियाफ्त किया, ये बंज उठाकर लाया है ना? सच सच बता। हाँ जी, उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन हिलाई। यार फिज्जे, तू तो ऊंचा कारीगर लगता है, लाली ने बेतकल्लुफी से कहा। साफ उठा लाया बंज, जरा भी खटका ना हुआ। बस जी, अल्लाह की मेहरबानी है, वो खुश होकर फखरिया लहजे में बोला। जिस डंगर पर हाथ फेर दिया समझ ले अपना हो गया। वो भैंस की गर्दन और पीठ पर आहिस्ता आहिस्ता हाथ फेरने लगा। लाली ने रहीम दाद के हाथ से चाकू लेकर अपने कब्जे में किया। फिर जैसे पूछा, तैनू अब कित्थे जाना है? उसने जवाब देने के बजाय उल्टा लाली से सवाल किया, तू ये क्यों जानना चाहता है? लाली जलकर बोला, थाने में तेरे खिलाफ पर्चा चाक कराना है ना? भज्जे ने दोनों का ऊपर से नीचे तक जायजा लिया। धुंधली धुंधली रोशनी में वो शुलू के जैसे आधी आस्तीनों के कुर्ते और घुटनों तक ऊंचे ऊंचे जांगिया नुमा पायजाने पहने हुए थे। कुर्तों पर जेल के नंबर पड़े थे। वो मध्यम लहजे में बोला, तुम थाने कैसे जा सकते हो? भज्जा उन्हें मुश्तबा नजरों से घूरने लगा। तूने फिर टेढ़ी गल बात की। लाली ने खुला चाकू उसके सामने कर दिया। भज्जा डर गया। आजिज़ी से बोला, मुझे अब जाने दे, जाग हो गई तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। गलती शलती हो गई तो माफ कर दे, मैनू अभी बहुत दूर जाना है। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, तेनू कहाँ जाना है? इस दफा लाली का लहजा नरम था। वो बोला, मैंने जी पहले उभर जाना है,
उसने शुमाल की सिमत हाथ उठाया। उभर 5 मील इधर झंगड़ में है। तेनू तो पता ही होगा, चोरी के डंगर उठाने के बाद उभर ही में छुपा के रखे जाते हैं। इतने मैनू भी ऐसा ही करना है, बंजी नू उभर में ले जाके रखूंगा। ए गले तो फिर हाथ मिला, लाली ने चहक कर कहा और गरम जोशी से फिज्जा का हाथ थाम लिया। जा, एक बंज और उड़ाला। वो इनकार में गर्दन हिलाने लगा। ना जीना, एक ही बहुत है। मैं 2 भैंस अकेले लेकर जा भी तो नहीं सकता। लंबा रास्ता है, आगे नहर है। परवाह ना कर, हम दोनों जो तेरी मदद को मौजूद हैं, उभर तक तेरे साथ ही चलेंगे। लाली ने उसे होले से धक्का दिया। फटाफट जा, देरी ना कर। वो झिझकते हुए बोला, बंज यहीं छोड़ दूं? छोड़ दे, कहीं नहीं जाएगी। लाली ने मुस्कुराकर बेनियाजी से कहा, हमने रस्सागिरी या मवेशी चोरी नहीं करनी। हम ऐसा घटिया धंधा नहीं करते, तो बिल्कुल फिक्र ना कर। वापसी पर बंज तुझे यहीं मिलेगी। फिज्जा कुछ न बोला, खामोशी से ढारे की सिमत बढ़ा और एक बार फिर अंधेरे में गायब हो गया। रहीमदाद अब तक खामोश खड़ा था, दिल ही दिल में लाली की हरकतों पर कढ़ रहा था। जब उससे जब्त ना हो सका तो झुंझलाते हुए लहजे में कहने लगा, यार लाली, तूने ये क्या चक्कर चलाया है? खामखा इतना वक्त ख़राब किया। अब तक तो हम बहुत दूर निकल जाते। कहाँ निकल जाते? ना रास्ता मालूम, ना जगह का कोई अता पता। लाली ने रहीमदाद के कंधे पर हाथ रख दिया। रहे तू बेकार में अपना मगज़ ख़राब ना कर, तू ये बातें नहीं समझ सकता। तेनू पता नहीं, फिज्जा अपने बहुत काम आएगा। क्या काम आएगा? रहीमदाद के लहजे में अभी तक झुंझलाहट थी। उभर में फिजा जहां मवेशी छिपाता है, वहीं हम भी छुप सकते हैं, लाली ने कहा। पहले कहीं छुपने का ठिकाना मिलना चाहिए। इसका बंदोबस्त फिजा कर देगा। आगे भी वो काम आएगा। वो भी मुजरिम, हम भी मुजरिम, और मुजरिम की मदद मुजरिम ही कर सकता है। क्या समझा? रहीमदाद की समझ में लाली की बात आ गई। उसने कुछ न कहा। भैंस उनसे चंद कदम के फासले पर चुपचाप खड़ी जुगाली कर रही थी। दम हिला हिलाकर मच्छर उड़ा रही थी। रहीमदाद और लाली उस समत गर्दन उठाए देख रहे थे जिधर फिजा गया था। लेकिन इस बार फिजा जल्दी न लौटा। उसे देर हुई तो रहीमदाद को तशवीश हुई। उसने अपने खौफ का इजहार करते हुए कहा, फिजा अभी तक नहीं आया, ऐसा ना हो कोई गड़बड़ हो जाए। हौसले से काम ले, हौसले से। लाली ने रहीमदाद को तसल्ली दी। कुछ वक्त और गुजर गया। वो दोनों फिजा की वापसी का बेचैनी से इंतजार करते रहे। रात ढलती जा रही थी। हवा की झोंकों से दरख्तों के खुश्क पत्ते खड़खड़ाहट पैदा कर रहे थे। अब लाली भी परेशान हो गया था। अचानक ढारे की तरफ कोई जोर से खनकारा। साथ ही आवाज उभरी, ओए, कौन है? लाली और रहीमदाद ने घबरा कर देखा। फज्जा ढारे के छप्पर के नीचे से निकला। अंधेरे में उसकी सफ़ेद धोती और कमीज दूर से नजर आ रही थी। उसके पीछे पीछे मवेशियों का रखवाला भी ढारे से निकला। उसके हाथ में लंबी डांग थी। वो डांग संभाले फज्जा के ताक़ुब में दौड़ा और ऊंची आवाज से चोर चोर की सदा भी बुलंद करता रहा। लाली और रहीमदाद इससे ज्यादा कुछ और न देख सके। वो सरासीमा होकर जिधर मुंह उठा सरपट भागे। ना उन्होंने करीब खड़ी हुई चोरी की भैंस पर तवज्जो दी और ना फज्जा की तरफ कोई ध्यान दिया। वो जल्द से जल्द गांव से निकल जाना चाहते थे। मशरिकी उफ़ुक़ पर हल्का हल्का दूधिया उजाला फैल रहा था। रात रुखसत हो रही थी। सुबह की आमद थी। लेकिन सुबह की आमद के साथ साथ लाली और रहीमदाद के लिए ख़तरा भी करीब आता जा रहा था। दिन की रोशनी में वो घूम फिर सकते थे। उनके जिस्मों पर जेल की मखसूस वर्दी थी जो पुकार पुकार कर कह रही थी कि वो मफरूर कैदी थे। वक्त कम था और उन्हें जल्द से जल्द छुपने के लिए किसी ठिकाने की तलाश थी। लाली ने इधर उधर निगाह दौड़ाई। उसे नशीब में कुछ फासले पर सकनाला नजर आया। ये बरसाती नाला अब खुश्क और उजाड़ पड़ा था। इसके एक किनारे पर फराश और बेर के घने दरख्त थे जो बुलंदी पर दूर तक फैले हुए थे। लाली ने दरख्तों को गौर से देखा तो उसे ये जगह छुपने के लिए मुनासिब लगी। उसने मुड़कर रहीमदाद को देखा। वो ज़मीन पर बेसुध पड़ा था और गहरी गहरी सांसें भर रहा था। लाली ने झुककर उसे झंझोड़ा। बहुत सस्ता चुका, अब उठ के बैठ। रहीमदाद ने करवट बदली और थके हुए लहजे में बोला, मुझे तो ऊँघ लग रही है। लाली ने उसका हाथ पकड़कर खींचा, झुंझला कर कहा, उठता है कि नहीं? नहीं उठा तो मैं अकेला ही चला जाऊंगा। रहीमदाद झट उठकर खड़ा हो गया।
आंखें मलते हुए बोला, ये तो बता जाना किधर है? सवेरा हो रहा है, उजाला फैलता जा रहा है। लाली ने नशेब में उतरते हुए कहा, मेरे पीछे पीछे चला, स्कनाला के उस पार जो जंगल है, दिन वहीं गुजारेंगे। उसने एक हाथ उठाकर दरख्तों के दूर तक फैले हुए सिलसिला की जानिब इशारा किया। ये घना जंगल था, करीब भी था। रहीम दाद चुपचाप लाली के हमरा नशीब में उतरने लगा। दोनों आगे बढ़े, सकानाला पर पहुंचे। कुछ दूर जाने के बाद टोबा बानेला। उसमें अभी तक पिछली बरसात का पानी मौजूद था, मगर ज्यादा गदला ना था। दोनों टोबे के किनारे बैठ गए, चलों में भरकर पानी पिया, मुंह धोया, हाथ धोए और तरोताज़ा होकर दरख्तों की जानिब बढ़े। अब मशरिक में रोशनी का सुर्ख अलाव दहकने लगा था। सूरज तुलू हो रहा था, मगर जंगल के दरख्तों के नीचे अभी तक अंधेरा था। वो आगे और आगे बढ़ते गए, उजाला फैलता गया। उन्हें एक पुराना दरख्त नजर आया। उसका तना खूब चौड़ा था और अंदर से खोखला भी था, लेकिन उसमें सिर्फ एक आदमी के छुपने की गुंजाइश थी। दोनों देर तक इधर उधर घूमते रहे। अब दरख्तों के पत्तों से धूप छन छन कर नीचे बिखरने लगी। हर तरफ परिंदों के चहचहे गूंज रहे थे। थकन से दोनों का बुरा हाल था। अंग अंग टूट रहा था। नींद गालिब थी और भूख भी सता रही थी। उन्हें एक पगडंडी नजर आई। वो आहिस्ता आहिस्ता पगडंडी पर चलने लगे। कुछ ही दूर गए होंगे कि उनकी नज़र लकड़ी के तख्तों की बनी हुई एक बोसीदा झोंपड़ी पर पड़ी। पहले तो वो करीब जाते हुए डरे, मगर लाली ने इस दफ़ा भी हिम्मत से काम लिया। उसने झोंपड़ी के नज़दीक पहुंचकर दरवाजे को आहिस्ता से धक्का दिया। दरवाज़ा चरचराता हुआ खुल गया। दोनों ने अंदर झांक कर देखा। झोंपड़ी बिल्कुल खाली थी। फर्श पर खुश्क घास बिछी थी। जगह जगह घोड़े की लीद बिखरी थी। वो अंदर दाखिल हुए और निढाल होकर फर्श पर गिर पड़े। लाली कुछ देर खामोश लेटा रहा, फिर उठकर दरवाजे के पास गया और वहीं बैठ गया। उसने पलटकर देखा। रहीम दाद आंखें बंद किए खामोश पड़ा था। लाली ने दरवाज़ा खुला रखा और चौकन्ना नज़रों से बाहर देखता रहा। हर तरफ गहरा सुन्नाटा था। जंगल साएं साएं कर रहा था। वो कुछ देर जागता रहा, फिर नींद ने शबखून मारा। वो झूमते झूमते एक तरफ लुढ़क गया। दरवाज़ा खुला था। लाली और रहीम दाद बेखबर सो रहे थे। दोपहर हुई, सपहर हुई, दिन ढलने लगा, साए तवील हो गए। दफतन सन्नाटे में पगडंडी पर कदमों की आहट उभरी। लाली की आंख खुल गई। खतरे का एहसास खौफ बनकर उसके चेहरे पर मुंडलाने लगा। उसने आहिस्ता से रहीम दाद को झंझोड़ा। वो झट उठकर बैठ गया। आहट उसने भी सुन ली थी। दोनों बिल्कुल खामोश थे और अनजाने खौफ से सहमे हुए थे। लाली के पास फुजा का चाकू मौजूद था। उसने चाकू खोला और दरवाजे की ओट में चौकस होकर खड़ा हो गया। रहीम दाद भी उसके पीछे ही खड़ा था। आहट करीब होती गई, इतनी करीब कि उन्हें यह अंदाज़ा हो गया कि आने वाला तन्हा था और बड़े बड़े बूट पहने हुए था। मगर वो उनकी तरफ ना आया, आगे निकल गया। उसकी चाप खुश्क पत्तों पर देर तक उभरती रही और जब सुन्नाटे में डूबकर ख़त्म हो गई तो दोनों के चेहरों पर छाया हुआ खौफ मिट गया। वो थके थके अंदाज में फर्श पर बैठ गए। ज़रा सुकून नसीब हुआ तो भूख ने परेशान किया। घास पर इधर उधर चने के दाने बिखरे हुए थे। रहीम दाद की उन पर नजर पड़ी तो चुन चुन कर खाने लगा। लाली भी खाने लगा। उन्होंने ढूंढ ढूंढ कर एक एक दाना खा लिया। चने खुश्क और गीले थे, मुट्ठी भर भी न थे। भूख तो क्या मटती, अलबत्ता प्यास शिद्दत से बढ़ी। मगर वो दरवाजे से बाहर ना निकल सकते थे। दिन की रोशनी अभी तक फैली थी और रोशनी में निकलना खतरे को दावत देना था। सूरज डूब गया। शाम का धुंधलका हर तरफ फैल गया। प्यास से दोनों के गलों में कांटे चुभ रहे थे। जब अंधेरा किसी कदर गहरा हुआ तो दोनों झोंपड़ी से बाहर आए। हवा उस वक्त तेज थी और दरख्तों में सनसनाती हुई चल रही थी। खुश्क पत्ते उड़ उड़ कर शोर मचा रहे थे। दोनों खामोशी से पगडंडी पर चलते रहे। वो टोबे की जानिब जा रहे थे, लेकिन लाली ने इस दफ़ा नशेब में पहुंचने के लिए दूसरा रास्ता इख्तियार किया। मील सवा मील का फासला तय करके दोनों ढलवान से नीचे उतरने लगे।
टोबा ज़्यादा दूर ना था मगर रास्ता ख़राब था। नशेब में उतरते हुए रहीम दाद का पैर फिसला। वो दूर तक लुढ़कता चला गया। चोट ज़्यादा नहीं आई थी लेकिन वो लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। टोबे पर पहुंचकर उन्होंने इस बेकरारी से पानी पिया कि उनके पेट फूल गए। दोनों टोबे के किनारे लेट गए और देर तक बेसुध पड़े रहे। इस दफा टोबे का पानी पीकर लाली का जी मतलाने लगा, मगर उसने खुद को संभाला, उठकर खड़ा हो गया। रहीमदाद भी चलने के लिए तैयार हो गया। दोनों आगे बढ़े, लेकिन वो ज्यादा दूर ना जा सके। लाली की तबीयत फिर बिगड़ी। वो अपकाइयां लेने लगा और एक झाड़ी के करीब निढाल होकर गिर पड़ा। उस पर गशी किसी कैफियत तारी थी। जरा देर वो जमीन पर लेटा गहरी गहरी सांसें भरता रहा, फिर आंखें बंद की और सो गया। रहीमदाद उसके करीब ही बैठ गया और आहिस्ता आहिस्ता लाली का सर दबाने लगा। कुछ ही वक्त गुजरा था कि उजाला फैलने लगा। चांद दरख्तों के पीछे से धीरे धीरे तुलू हो रहा था। देखते देखते चांदनी हर तरफ फैल गई। टोबे का पानी झिलमिलाने लगा, लेकिन चांदनी जिस कदर निखरती जा रही थी, रहीमदाद उसी कदर खौफसदा होता जा रहा था। उसने इधर उधर नज़रें दौड़ाकर देखा तो फौरन अंदाज़ा हो गया कि वो कतई गैर महफूज जगह बैठा था। हर तरफ खुला रेतला मैदान था और झाड़ी भी ज़्यादा गुंजान ना थी। उसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी, मगर लाली हर खतरे से और हर खदशे से बेनियाज गहरी नींद सो रहा था। कुछ वक्त और गुजर गया। चांद चढ़कर दरख्तों के ऊपर आ गया। रेत के जर्रे चमकने लगे, साए सिमट गए। सन्नाटा बहुत गहरा था। जरा देर बाद रात के गहरे सन्नाटे में कोई जोर से खनकारा, साथ ही खुश्क पत्तों पर आहट हुई। आहट रफ्ता रफ्ता करीब आती गई। कोई ढलवान से नीचे उतर रहा था, मगर वो एक नहीं दो थे। रहीमदाद ने उन्हें दूर ही से देख लिया था। जब वो इसी सिंध आने लगे तो रहीमदाद सख्त घबरा गया। उसने लाली को आने वाले खतरे से खबरदार करने की गर्ज से जोर जोर से झंझोड़ा, मगर लाली बेदार ना हुआ। करवट बदलकर बेखबर सोता रहा। आने वाले नज़दीक आते गए। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। रहीमदाद और ज़्यादा बदहवास हो गया। फिर एक लम्हा ऐसा भी आया जब उसने उठकर भागना चाहा, लेकिन वो ऐसा ना कर सका। अपनी जगह दम बखुद बैठा रहा। उसने देखा उनमें एक मर्द था और दूसरी औरत थी। मर्द आगे आगे चल रहा था। उसके सर पर बड़ी सी गठड़ी थी। औरत की गोद में बच्चा था। दोनों ने रहीमदाद को खींच लिया था, मगर वो खामोशी से चलते रहे। जब वो बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए तो औरत लम्हे भर को ठिठकी। उसने गर्दन मोड़कर रहीमदाद को देखा और उसके करीब पड़े हुए लाली को भी देखा। झिझकते हुए बोली, कोई बंदा जान पड़ता है। होगा कोई तसुद्धी, सीधी चल। मर्द ने उसे डांटा। दोनों ने मजीद बातचीत ना की, चुपचाप रहीमदाद और लाली के करीब से गुजरकर आगे बढ़ गए। औरत मुड़ मुड़ कर देखती रही। फिर दोनों दूर होते होते अंधेरे में गुम हो गए। उनकी चाप देर तक खुश्क पत्तों पर उभरती रही। उनके जाने के बाद भी रहीमदाद का खौफ रफा ना हुआ। वो चौकन्ना नजरों से बार बार उस समत देखता रहा जिधर वो गए थे। हर आहट पर उसके कान खड़े हो जाते। दिल जोर जोर से धड़कने लगता। बहुत देर हो गई, कोई ना आया। चांद चढ़ते चढ़ते बीच आसमान पर पहुंच गया। रात पूरी तरह जाग रही थी और लाली सो रहा था। वो आधी रात के बाद जागा। उठकर बैठा तो रहीमदाद ने पूछा, अब तेरा जी कैसा है? लाली ने अंगड़ाई लेकर जवाब दिया, ठीक ही है। फिर आंखें फाड़कर चांद को देखा। बहुत रात हो गई, तूने जगाया भी नहीं। बहुत जगाया, तुझे अपना होश ही कब था? तबीयत बहुत गड़बड़ हो गई थी। लाली उठकर खड़ा हो गया। रहीमे, तू भी खड़ा हो जा। अपने पास तो चलने के लिए रात ही है, दिन में कहीं छुपकर आराम करेंगे। रहीमदाद चुपचाप उठकर खड़ा हो गया। दोनों आगे बढ़े और कहीं ठहरे बगैर मुसलसल चलते रहे। चांद डूब गया, अंधेरा छा गया, रास्ता दुश्वार हो गया। वो सकनाला की गुजरगाह पर चल रहे थे। जमीन रेतली और नाहमवार थी। दोनों तरफ ऊंचे नीचे टीले और टिब्बे थे। कहीं कहीं कीकर और बेरी के दरख्त थे। जंगली झाड़ियों के झुंड थे। उन्होंने सताने की मुतल्लक कोशिश न की। आगे और आगे बढ़ते गए।
जब सुबह का हल्का हल्का उजाला हुआ और अंधेरा छटा तो वो एक ऐसी जगह पहुंच चुके थे जहां घास और सरकंडों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। जमीन दलदली थी, इस कदर नर्म और पोली के पैर अंदर धंसते थे। उनमें दलदल उबूर करने की हिम्मत न थी। दोनों थकन से निढाल हो रहे थे। सूरज भी तुलू होने वाला था। उन्होंने आगे जाने का इरादा तर्क कर दिया और एक ऊंचे टीले पर चढ़ गए। हर तरफ वीरानी छाई थी। दोनों ने बुलंदी से देखा। दलदल के उस पार बहुत बड़ा टोबा था जो सुबह की रोशनी में किसी शफाफ झील की तरह झिलमिलाता दूर तक फैलता चला गया था। कुछ दूर सकाला पर पुल था जिस पर सड़क गुजरती थी। ये पुख्ता रोड थी। लाली कुछ देर रहीम दाद के साथ टीले पर खामोश खड़ा रहा। उसके चेहरे पर थकन के साथ साथ इत्मीनान भी झलक रहा था। उसे किसी ऐसे ही मकाम की तलाश थी जो सड़क से नज़दीक हो और महफूज भी। ये ऐसा ही महफूज इलाका था। दूर दूर तक आबादी का नामो निशान न था। ना कोई पगडंडी थी, न रास्ता था। हर तरफ टीले और टिब्बे थे। जंगली पौधों की झाड़ियाँ थीं। कहीं कहीं फराश के इक्का दुक्का दरख्त भी थे। दोनों ने इधर उधर घूम फिरकर टीलों के दरमियान छुपने का ठिकाना तलाश करने की कोशिश की। जल्द ही उन्हें एक गार मिल गया। ये एक कुशादा और कदे आदम ऊंचा गार था। उन्होंने बाहर से गार का जायजा लिया, अंदर दाखिल हुए। चटेल जमीन पर आंखें बंद करके लेट गए। दिन भर गहरी नींद सोते रहे। आंख खुली तो शाम आहिस्ता आहिस्ता टीलों और टब्बों पर उतर रही थी। दलदल पर उगी हुई ऊंची ऊंची घास और सरकंडों के पौधे धुंध में लिपटे हुए थे। गार से निकलकर दोनों बाहर आए। सूरज टीलों के दूर तक फैले हुए नाहमवार सिलसिले के पीछे डूब चुका था। मगरिब में गहरी सुर्ख रोशनी फैली थी। इस रोशनी में रहीम दाद बज्जू की मानिंद डरावना नजर आ रहा था। उसकी आंखें हलकों के अंदर धसी हुई थीं। रुखसारों की हड्डियां उभर कर नुमाया हो गई थीं। भूख के मारे उसका बुरा हाल था। लाली भी भूख से निढाल था, मगर इस वीराने में खाने के लिए क्या मिलता। इस वक्त उन्हें सिर्फ पेट की आग सर्द करने की फिक्र दामनगीर थी। दलदल उबूर करना खतरनाक था और टीलों और टिब्बों के दरमियान रास्ता बनाना भी आसान न था, मगर अंधेरा बढ़ने से पहले ही वो आगे निकल जाना चाहते थे। झपटे में चलना खतरे से खाली ना था। उन्हें टीलों की बुलंदी पर दूर ही से देखा जा सकता था। सड़क पर गुजरने वाली गाड़ियों की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थीं। आखिर बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने कहीं जाने का इरादा मुलतवी कर दिया और गार के दहाने पर बैठकर चांद के तुलू होने का इंतज़ार करने लगे। रात का एक पहर गुजरा और चांद तुलू हुआ तो दोनों गार से बाहर निकले और छुटकी हुई चांदनी में टीलों और टब्बों के दरमियान चलने लगे। वो रफ्ता रफ्ता सड़क की जानिब बढ़ रहे थे, मगर रास्ता इस कदर पेचीदा और दुश्वार था कि उन्हें संभल कर ठहर ठहर कर चलना पड़ता। आखिर वो ऊंचे नीचे टीले उबूर करने के बाद नशीब में उतरे। सामने चांदनी में झलकता हुआ टोबा था। उसके एक किनारे पर ऊंची ऊंची घास थी। आकब में दलदल थी। टोबे से कोई फरलांग भर के फासले पर पुल था। सड़क पर आमदोरफ्त करीब करीब खत्म हो चुकी थी। हर तरफ हो का आलम था। दोनों पुल की जानिब बढ़ने लगे। चंद ही कदम आगे गए थे कि सन्नाटे में दूर से हॉर्न की आवाज उभरी। वो जहां थे वहीं रुक गए। सड़क के मोड़ पर तेज रोशनी झिलमिलाई। जरा देर बाद कार की दोनों बत्तियां नजर आने लगीं। कार बहुत तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी। पलक झपकते ही पुल पर पहुंच गई। फिर एक जोरदार धमाका हुआ। लाली और रहीम दाद ने खौफ और हैरत से आंखें फाड़ कर देखा। कार बेकाबू हुई, पुल के जंगले से टकराई, उछली और ढलवान पर तेजी से लुढ़कती हुई नीचे आने लगी। साथ ही इंसानी चीखें भी उभरीं। फिर एक और धमाका हुआ। ये पहले धमाका से ज्यादा बड़ा और हौलनाक था। लुढ़कती कार से ऊंचे ऊंचे शोले बुलंद हुए। कार टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई। उसके बाद गहरी खामोशी छा गई। लाली और रहीम दाद बुत बने चुपचाप खड़े रहे। सड़क बिल्कुल सुन्नान थी। हर तरफ गहरा सुकूत था। उजली चांदनी में जली हुई कार का ढांचा स्याह धब्बे की मानिंद नजर आ रहा था। यकायक खामोशी में रुक रुक कर ऐसी आवाज उभरी जैसे कोई शदीद दर्द से कराह रहा हो।
लाली खामोशी से कराह सुनता रहा, मगर ज्यादा देर उसे सुन न सका। वो आवाज की सिमत बढ़ा, रहीम दाद भी उसके पीछे पीछे हो लिया। वो बहुत सहमा हुआ नजर आ रहा था। दोनों कुछ ही दूर गए होंगे कि कराह बंद हो गई, मगर वो रुके नहीं, आगे ही बढ़ते गए। करीब जाकर उन्होंने देखा कार के जले हुए ढांचे के नीचे एक लाश दबी थी। आधा धड़ उल्टी हुई कार के नीचे दबा हुआ था। चेहरा और हाथ जलकर स्याह पड़ गए थे। जले हुए गोश्त की तेज बू फैली हुई थी। ढांचे के आसपास कार के टूटे हुए दरवाजे, 2 पहिए और दूसरे हिस्से इधर उधर बिखरे हुए थे। चांदनी में रहीम दाद ने कोई चीज देखी और उस पर बिल्ली की तरह तेजी से झपटा। ये एक मुड़ी तड़ी रोटी थी। रहीम दाद ने उसे झट उठाया। उसमें लगी हुई रेत और मिट्टी साफ किए बगैर बेसब्री से हड़प करने लगा। रेत के जर्रे उसके दांतों तले कड़कड़ाहट पैदा कर रहे थे, मगर वो जल्दी जल्दी एक के बाद दूसरा लुक़मा निगलता चला गया। लाली भी उसके करीब पहुंच गया। रहीम दाद ने रोटी का टुकड़ा उसे भी दिया। रोटी बासी और ठंडी थी, लेकिन वो उसे मज़े से खाते रहे। रोटी खाने के बाद उन्होंने टोबे पर जाकर पानी पिया। अब उनके जिस्मों में तवानाई और चुस्ती आ गई थी। उन्होंने कार के टूटे फूटे ढांचे के आसपास रोटी की अशिया तलाश करना शुरू कर दी। जल्द ही उन्हें बेद की उल्टी हुई टोकरी में एक खुला हुआ नाश्तादान मिल गया। उसमें भुना गोश्त था, उबले हुए अंडे थे, 3 मोटे मोटे पराठे थे। टोकरी में एक डबल रोटी थी और बिस्किटों के 2 पैकेट भी थे। खाने की अशिया देखकर उनकी आंखों में तेज चमक आ गई। दोनों टोकरी के करीब बैठ गए। रहीम दाद ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर एक पराठा उठाया। लाली ने फौरन उसे टोका। सब ना खा जाना, कई रोज का राशन है ये। अच्छा, रहीम दाद ने मुस्कुराकर आधा पराठा लाली को देते हुए कहा, ठीक कह रहा है तू, आगे की फिक्र जरूर करनी चाहिए। दोनों ने पराठों के आधे आधे टुकड़ों पर थोड़ा सा भुना गोश्त रखा और इत्मीनान से खाने लगे। खाने से फारिग होकर उन्होंने नाश्तादान बंद किया, जो एक तरफ से टेढ़ा पड़ गया था। बड़ी मुश्किल से बंद हुआ। रहीम दाद ने उसे टोकरी में डाला। डबल रोटी और बिस्किटों के पैकेट भी रखे। दोनों ने एक बार फिर टोबे पर जाकर पानी पिया। पानी पीकर लाली जोर जोर से डकारें लेने लगा। रहीम दाद को खतरे के एहसास ने खौफजदा किया। यार, रोटी तो खा ली, अब चलना चाहिए। कहाँ चलें? लाली ने पूछा। आगे चलते हैं, सड़क का रास्ता ठीक रहेगा। लाली ने उसे घूर कर देखा। सड़क का रास्ता ठीक नहीं रहेगा, आगे खतरा ही खतरा है। ये ठिकाना अभी छोड़ना ठीक नहीं। वो लम्हे भर खामोश रहा, फिर कहने लगा, यार, रोटी का तो बंदोबस्त हो गया, पानी का भी राशन रखना होगा। वो कार के ढांचे की जानिब चल दिया। रहीम दाद उसके साथ साथ था। ढांचे के करीब अभी तक जले हुए गोश्त की बू फैली थी। ये बू इस कदर तेज और हौलनाक थी कि रहीम दाद दूर ही बैठ गया। लाली चंद कदम आगे बढ़ा, फिर वो भी बैठ गया। ढांचे में उसे अपने काम की कोई चीज़ नज़र नहीं आई। उसने ढांचे के इधर उधर झांक कर देखा। कुछ फासले पर उसे एक चमकता हुआ डब्बा नज़र आया। लाली को इसी की तलाश थी। ये रेडिएटर में पानी डालने का डब्बा था। उसने आगे बढ़कर डब्बा उठा लिया और रहीम दाद को देकर बोला, ले यार, अपना तो काम बन गया, इसमें पानी भर ले, कई दिन चलेगा। रहीम दाद ने डब्बा संभाल लिया और टोबे पर चला गया। उसने डब्बा अंदर बाहर से कई बार धोया और पानी भरकर ऊपर से ढकना बंद कर दिया। पानी से भरा हुआ टीन का डब्बा खासा वजनी था। उसके दूसरे हाथ में टोकरी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ लाली के पास पहुंचा। वो ढांचे से हटकर कोई 20 कदम दूर एक तोदे के करीब खड़ा था। उसके सामने जमीन पर एक आदमी पड़ा था। रहीम दाद ने आगे बढ़कर देखा। आदमी का चेहरा और बाल खाक से लिथड़े हुए थे। दाहिना हाथ कोहनी के पास से कटकर अलहदा हो गया था। वो सफ़ेद बेज शर्ट और गहरी नीली पतलून पहने हुए था। पैरों में सियाह जूते थे। उजली चांदनी में एक एक चीज साफ नजर आ रही थी। बज़ाक़ता से वो सरकारी अफसर लगता था। रहीम दाद ने आहिस्ता से कहा, मर गया। लाली ने पलटकर रहीम दाद को देखा और कुछ कहे बगैर झुककर जमीन पर पड़े हुए आदमी के हाथ से घड़ी उतारी और अपनी कलाई पर बांध ली। फिर उसके पैरों से जल्दी जल्दी जूते उतारने लगा। इसके बाद उसने पतलून के बटन खोले और दोनों पाइंचे पकड़कर जोर से झटका दिया। पतलून उतरकर उसके हाथ में आ गई। लाली ने फौरन पतलून की जेबें टटोली,
पिछली जेब से चमड़े का पर्स निकला। लाली ने पर्स खोलकर अंदर नजर डाली। पर्स में नोट थे। उसने पर्स जेब में रख दिया। फिर वो बस शर्ट उतारने लगा तो लाश में हल्की सी हरकत हुई। साथ ही उखड़ी उखड़ी सांस लेने की आवाज उभरी। रहीमदाद चीखा, अभी जिंदा है। लाली ने घूमकर उसकी जानिब कहरालूद नजरों से देखा और डटकर बोला, चुप करके खड़ा रह। उसने बुश शर्ट इस तरह उतारी जैसे कसाई बकरे की खाल उतारता है। फिर उसने बनियान और अंडरवेयर उतारने चाहे। बनियान और अंडरवेयर खून में डूबे हुए थे। बुश शर्ट पर भी खून के धब्बे थे, मगर ज्यादा बड़े नहीं थे। जख्मी आदमी के जिस्म में दोबारा हरकत नहीं हुई। उसके कटे हुए हाथ से खून बहने के बायस रेत पर बड़ा सा स्याह धब्बा बन गया था। लाली ने सारे कपड़े लपेटे और टोबे की जानिब चल दिया। उसने सबसे पहले बुश शर्ट पानी में डालकर धोई, मगर बनियान और अंडरवेयर एक तरफ फेंक दिए। लाली ने पतलून उलट पलट कर देखी। उस पर भी खून के कई धब्बे थे। वो पतलून धोने का इरादा कर ही रहा था कि सड़क पर आहट सुनाई दी। लाली और रहीमदाद दोनों ही ने चौंक कर उस तरफ देखा। ये सड़क पर किसी गाड़ी के दौड़ने की आवाज थी। दोनों को खतरे का एहसास हुआ। उन्होंने कपड़े समेटकर बगल में दबा लिए और रहीमदाद के हाथ से टोकरी ले ली। दोनों आगे पीछे तेजी से टीलों की जानिब दौड़े, लेकिन वो टीलों पर चढ़ने भी ना पाए थे कि ब्रेक लगने की तेज आवाज उभरी। ये एक ट्रक था और पुल पर ठहर गया था। दोनों ने सहमी हुई नजरों से उस तरफ देखा। ट्रक ड्राइवर दरवाजा खोलकर नीचे उतरा। उसके साथ एक और शख्स भी ट्रक से बाहर आया। दोनों पुल के करीब खड़े होकर नीचे झांकने लगे। फिर वो वहां से हट गए। जरा ही देर बाद दोनों आगे पीछे ढलवान से नीचे उतरने लगे। रहीमदाद और लाली ने उन्हें नशेब में उतरते देखा तो दोनों एक उभरे हुए ऊंचे तौदे की आड़ में दुबक गए, मगर ये जगह कतई गैर महफूज थी। चांद पूरी ताबानी से उनके सरों पर चमक रहा था। उजली चांदनी में हर चीज साफ नजर आ रही थी। उनसे करीब तर घनी झाड़ी भी खासी दूर और बुलंदी पर थी। उस तक पहुंचने की कोशिश करते तो दोनों दूर से साफ नजर आ जाते। आने वाले रफ्ता रफ्ता करीब आ रहे थे। वो नीचे पहुंचकर पहले टूटी फूटी कार के जले हुए ढांचे के पास गए, लेकिन उन्होंने ढांचे को हाथ नहीं लगाया। इधर उधर झुक झुक कर देखते रहे। उन्होंने ढांचे के नीचे दबी हुई लाश भी देखी। चंद मिनट तक वो ढांचे के आसपास मंडलाते रहे। एक बार वो इस तोदे के बहुत करीब पहुंच गए जिसके अक़िब में रहीमदाद और लाली दुबके बैठे थे। दोनों उनकी चाप साफ सुन रहे थे। लाली ने चाकू खोल लिया था और आने वाले खतरे का मुकाबला करने के लिए चौकस था। रहीमदाद ने भी एक पत्थर हाथ में उठा लिया था। लेकिन आने वाले ज्यादा देर नहीं ठहरे। उन्होंने जली हुई कार से टूटकर अलहदा हो जाने वाले दोनों पहिए उठाए और आहिस्ता आहिस्ता चढ़ाई पर चढ़ने लगे। लाली और रहीमदाद ने दोनों को जाते हुए देखा। वो भी आहिस्ता आहिस्ता खिसकते हुए बुलंदी की जानिब बढ़ने लगे। जब घनी झाड़ी के अक़िब में पहुंच गए तो उन्होंने पुल की जानिब देखा। ट्रक अभी खड़ा था। वो ट्रक के स्टार्ट होने और आगे जाने का इंतज़ार करने लगे, मगर ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। ज़रा ही देर बाद दोनों फिर नशेब में उतरते नजर आए। वो सीधे ढांचे के पास गए और उसमें जुड़े हुए पहिए निकालने की कोशिश करने लगे। लाली और रहीमदाद बुलंदी से उन्हें पूरी तरह देख रहे थे। अब वो इस जगह ठहरने के बजाय जल्द से जल्द गार में पहुंचना चाहते थे, लेकिन झाड़ी से निकलकर आगे जाना खतरे से खाली ना था। वो खामोश बैठे दोनों को देख रहे थे। खासी देर हो गई। चांद आहिस्ता आहिस्ता मगरिब में उतरता जा रहा था। साए तवील हो गए। चांद गुरूब हो जाने के बाद अंधेरे में चलना और गार तक पहुंचना बहुत दुश्वार था। उनकी बेचैनी लम्हा ब लम्हा बढ़ती जा रही थी। इधर वो दोनों खिसकने का नाम नहीं ले रहे थे। चांद जब मगरिबी उफुक के करीब पहुंच गया और टीलों के नशेब में अंधेरा फैलने लगा तो लाली और बेचैन हो गया। उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और पूरी कुव्वत के साथ ढांचे की जानिब फेंका। पत्थर कार के फौलादी ढांचे से टकराया। सन्नाटे में टन से आवाज हुई। ढांचे पर झुके हुए दोनों आदमी फौरन सीधे होकर खड़े हो गए। उन्होंने घबराए हुए अंदाज में इधर उधर देखा। फिर उनमें से एक पुल की जानिब सरपट भागा। दूसरा भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। दोनों तेजी से चढ़ाई उबूर करके पुल पर पहुंचे और ट्रक पर सवार हो गए। फौरन ही इंजन का शोर खामोशी में उभरा। ट्रक स्टार्ट हुआ और तेजी से आगे बढ़ गया। ट्रक जाने के बाद लाली ठट्ठा मार कर हंसा। रहीमदाद भी मुस्कुराने लगा। लाली ने उसकी पीठ पर बेतकल्लफी से हाथ मारकर कहा, कहो उस्ताद, कैसी रही तरकीब नंबर 1?
وہ فوراً کھڑا ہو گیا۔ اس نے چاقو بند کیا، ٹوکری اٹھائی اور کپڑے بغل میں دبا لیے۔ دونوں سنبھل سنبھل کر ٹیلوں پر چڑھنے لگے۔ رحیم داد ایک ہاتھ میں پانی سے بھرا ہوا ٹین کا ڈبہ اٹھائے اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ دونوں غار کے قریب پہنچے تو اندھیرا ہر طرف پھیل چکا تھا۔ رحیم داد بہت تھکا ہوا تھا۔ وہ پانی کا ڈبہ کونے میں رکھ کر لیٹ گیا، لیکن لالی ٹوکری اور بغل میں دبے ہوئے کپڑے رکھنے کے بعد بھی نہیں لیٹا۔ اس نے گیلی بیج شرٹ اٹھائی، جھٹکا دے کر پانی چھاڑا، غار کے دہانے پر پہنچا، بیج شرٹ ایک تودے پر پھیلا دی اور اس کے کناروں پر پتھر رکھ دیے۔ تیز ہوا سیٹیاں بجاتی ٹیلوں اور ٹبوں کے درمیان سے گزر رہی تھی۔ چاند بہت دور ایک اونچے ٹبے کے پیچھے آہستہ آہستہ اتر رہا تھا۔ دیکھتے دیکھتے وہ ایک دہکتا ہوا الاؤ رہ گیا۔ بادل اور نیز منظر تھا۔ لالی کھوئی کھوئی نظروں سے چاند کی الوداعی روشنی کو دیکھتا رہا۔ چاند ڈوب گیا، ٹیلے اور ٹبے تاریکی میں ڈوب گئے۔ لالی مڑا اور سنبھل سنبھل کر قدم رکھتا ہوا غار کے اندر چلا گیا۔ لالی اور رحیم داد کے پاس اب صرف بسکٹوں کا ایک پیکٹ رہ گیا تھا۔ اس میں سے بھی وہ 4 بسکٹ شام کو کھا چکے تھے۔ ٹین کا ڈبہ بھی پانی سے قریب قریب خالی ہو چکا تھا۔ وہ ڈبے سے منہ لگا کر گھونٹ گھونٹ پانی پیتے۔ اگر کوئی زیادہ پانی پینے کی کوشش کرتا تو دوسرا جھٹ ڈبہ اس سے چھین لیتا۔ دوپہر کو دھوپ تیز ہو جاتی، بنجر اور پتھریلے ٹیلے گرمی سے دہکنے لگتے۔ دونوں کو بار بار پیاس لگتی۔ شروع میں تو وہ اطمینان سے پانی پیتے رہے، مگر جب ڈبے میں پانی 1/4 سے بھی کم رہ گیا تو دونوں کی خود غرضی بیدار ہوئی۔ وہ پانی پیتے وقت ایک دوسرے کو شک، غصے سے گھور گھور کر دیکھتے۔ زیادہ جھنجھلاتے تو چھینا جھپٹی سے بھی دریغ نہ کرتے۔ لالی ہر بار زیادتی کرتا، رحیم داد کو کڑھتا اور غصے سے بڑبڑاتا تو وہ بے غیرتی سے دانت نکال کر کھسیانی ہنسی ہنستا۔ اس شام انہوں نے 2 بسکٹ کھائے اور ایک گھونٹ پانی پیا۔ آپس میں یہ سمجھوتا ہوا کہ صبح تک نہ کوئی بسکٹ کھائے گا نہ پانی پیے گا۔ اس بات پر سختی سے عمل کرنے کا عہد کر کے دونوں پڑھ کر سو گئے۔ لیکن رات گئے رحیم داد کی آنکھ کھل گئی۔ اسے سخت بھوک لگی تھی۔ وہ کچھ دیر خاموش لیٹا بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا۔ جب قرار نہ آیا تو اٹھ کر بیٹھ گیا۔ لالی گہری نیند سو رہا تھا۔ باہر اجلی چاندنی چھٹکی تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر غار کے باہر آیا اور دہانے پر کھڑا چاندنی میں ڈوبے ہوئے ٹیلوں اور ٹبوں کو دیکھتا رہا۔ وہ کئی منٹ تک خاموش کھڑا رہا۔ اس عرصہ میں لالی نے نہ کروٹ بدلی، نہ ہی جسم کو حرکت دی، بے خبر سوتا رہا۔ رحیم داد گردن موڑ کر اسے ایک ٹک دیکھتا رہا، پھر ہولے ہولے چلتا ہوا غار کے اندر گیا۔ ٹٹول کر بسکٹ کا پیکٹ اٹھایا اور آہستہ آہستہ بسکٹ کھانے لگا۔ اس نے ایک بسکٹ ختم کیا، ٹین کا ڈبہ اٹھایا، اس کا ڈھکنا کھولا اور جیسے ہی گردن اونچی کی، ڈبہ منہ سے لگایا، اچانک کسی نے اس کی گردن دبوچ لی۔ یہ لالی تھا اور اسے خون خوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ لمحے بھر خاموش رہ کر وہ غصے سے دھاڑا، اوئے بنجر دے پتر، یہ حرامی پن! رحیم داد کھسیانہ ہو کر بولا، یار میری گردن تو چھوڑ۔ لالی نے زور سے دھکا دیا۔ رحیم داد لڑھکتا ہوا دور تک چلا گیا۔ اس کا سر غار کی پتھریلی دیوار کے ساتھ زور سے ٹکرایا۔ آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے زبان سے کچھ نہ کہا، چند لمحے خاموش پڑا رہا، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر پانی کا ڈبہ اٹھایا اور غار کے باہر پھینک دیا۔ بسکٹوں کا پیکٹ بھی اٹھا کر غصے سے پھینک دیا اور غضبناک ہو کر بولا، لے جا، سب کچھ لے جا، مینوں کچھ نہیں لینا۔ لالی اس حرکت پر اور جھنجھلایا، دانت پیس کر رحیم داد پر جھپٹا اور گھونسوں اور لاتوں سے اس کی مرمت کرنے لگا۔ رحیم داد خاموشی سے بیٹھا پٹتا رہا، پھر پھرتی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ گردن جھکا کر اس نے لالی کے منہ پر زور سے ٹکر ماری۔ چوٹ کراری آئی، لالی کا جبڑا ہل گیا۔ وہ تکلیف سے بلبرا کر رحیم داد کو مارنے کے لیے پل پڑا۔ رحیم داد بھی پسپانا ہوا، دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ لالی کو جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ رحیم داد کو جس قدر کمزور اور بزدل سمجھتا تھا وہ ہرگز ایسا نہ تھا۔
اس کے ہاتھ پیروں میں خاصا کسبل تھا۔ ایک بار اس نے زور لگا کر لالی کو گرا دیا اور اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا۔ لالی بے بس ہو گیا۔ دونوں زور زور سے ہانپ رہے تھے۔ لالی ذرا دیر تک زمین پر بے بسی سے ادھر ادھر گردن ہلاتا رہا اور رحیم داد تابڑ توڑ مکے لگاتا رہا۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر رحیم داد کا چہرہ دبوچ لیا اور دانت بھینچ کر پوری قوت سے اسے دھکا دیا۔ رحیم داد کا سر کھٹاک سے پتھریلی دیوار سے ٹکرایا۔ وہ کراہتا ہوا ڈھیر ہو گیا۔ لالی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ رحیم داد دیوار کے پاس بے سدھ پڑا تھا۔ لالی خاموش بیٹھا اسے گھورتا رہا اور اپنے ہونٹوں سے بہتا ہوا خون ہاتھ سے بار بار پونچھتا رہا۔ پھر کھسکتا ہوا رحیم داد کے پاس چلا گیا۔ رحیم داد آنکھیں بند کیے چت لیٹا تھا اور رک رک کر سانس بھر رہا تھا۔ لالی نے اسے آہستہ سے جھنجھوڑا مگر وہ بے سدھ پڑا رہا۔ لالی نے کئی بار جھنجھوڑا لیکن رحیم داد نے آنکھ نہ کھولی۔ لالی کا سارا غصہ جھاگ کی مانند بیٹھ گیا۔ وہ پریشان ہو گیا اور رحیم داد کی پیشانی اور کن پٹیوں کو ہولے ہولے سہلانے لگا۔ معزز سامعین، یہاں اس ناول کی پہلی قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ اگلی قسط سننے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ بر وقت اپنے پسندیدہ ناولوں کو سن کر اس سے محظوظ ہو سکیں۔